अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एक मर्तबा फिर टॉकिंग मेंटल हेल्थ में उमर खान के साथ आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद। और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, बेशक थोड़ी सी की है, बेशक ज़्यादा की है, बेशक बड़ी लॉयल्टी के साथ की है, या बेशक थोड़ा तकल्लुफ़ के साथ की है, तो एक मर्तबा फिर वेलकम बैक। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ। जितने भी साल उन्होंने फील्ड में गुजारे हैं, शी हैज़ वर्कड हर वे थ्रू डिफरेंट डोमेन्स, काफ़ी मुख्तलिफ जहतों में काम किया। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, और आज क्यों हम उनसे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो वो हमें खुद बताएंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमायमा शेख। वेलकम उमायमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक। काम भी चल रहा है और अंग्रेज़ी वाला काम भी चल रहा है। सो शुरू करते हैं बिल्कुल राइट ऑफ द बैट कि थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि पढ़ाई और थोड़ा एक्सपीरियंस कि कहाँ क्या क्या आपने काम किया, किस तरह आपने अपने जो एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल प्रोफाइल को इवॉल्व किया और बेहतर किया, और फिर ऑफ कोर्स हम आज के बारे में भी बात करेंगे। तो Okay, Umar, first of all, thanks for having me. It's really an honor. अपने credentials के बारे में या अपने profession के बारे में बताने के लिए my credentials basically say, professional credentials say that I am a family medicine specialist, a public health consultant. Personally, I still consider myself a student because no matter our consultancy mein, you have a mindset of if you have a mindset of a student, you continue to evolve and progress, you know. And once you start thinking that you are a super duper consultant or a बहुत competent hai, then you cease to progress and evolve. So I still consider myself a student of life and of religion in general. ओके, सो चलिए, बात तो आपने थोड़ा बताया, मगर अगर हम बात करते हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और फिर आपने सर्टिफिकेशंस और काफ़ी कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी हासिल की, तो उस पर ज़रा रोशनी डालेंगी। एमबीबीएस किया, स्पेशलाइजेशन यू सेड फैमिली मेडिसिन, सो मेंटल हेल्थ साइड पे आपका आना कैसा हुआ? Umair, before starting on mental health, I would like to take you on a journey briefly, how I started my academic journey from a very beautiful city of Abbottabad. I stayed there till FSC, and then I did my medicine from Karachi. Then I came back to Islamabad for a house job, and I then got inducted into a postgraduate training program, neurosurgery department mein. After 2.5 years, I had to change the course towards medicine, and then I opted for primary care medicine. Along the way, because kuch is tarah ki nature bhi hai that I like doing multiple things. So along the way, I did my master's in public health, and then after that, I became a member of College of Physicians and Surgeons Pakistan within the discipline of family medicine. That's an MCPS degree. After that, I did my fellowship in quality management in healthcare from Ireland. And every year, I intentionally make an effort to augment my knowledge base. तमाम चीज़ों में, so I make it a point intentionally कि मैं कोई भी टाइम, मतलब फेज मेरा जो लाइफ का गुजर रहा है उसमें कोई ऐसा टाइम ना हो मैं स्टूडेंट ना हूँ. So I keep enrolling into different programs. So because of that, I did some certifications that caused me to delve into mental health. So why I came to mental health on top of all the other things, it's basically for my patient. आप कह सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशंस और जिस तरह मैं पेशेंट्स को देखती थी, जो उनके हालात होते थे, so that was, जैसे कहते हैं ना, वो necessity is the mother of invention. So that caused me to look into this aspect in order to provide a comprehensive healthcare management plan to my patient. But in fact, it's for my own capacity building कि मैं जब किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, especially for mental health, for example, कोई एंजाइटी के साथ आया है, कोई डिप्रेशन के साथ आया है, किसी की डायबिटीज चल रही है तो उसको साथ में डिप्रेशन भी है, because we tend to see कि chronic diseases में डिप्रेशन तो एक पार्ट आ ही जाता है. Trying to implore and explore कि why my patient, जिसको मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ, all of a sudden, why is she behaving in a certain way? Why is she depressed? Why is she anxious? Why उसके बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मदर बहुत difficult patient बनती जा रही हैं.
اینڈ جب ان سے بات کی جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اینڈ جسٹ ان آرڈر ٹو ایٹ ٹائمس ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیکیشن اس لیے لکھتے ہیں یا گھر والے پیشنٹ کو اس لیے لے کے آتے ہیں جن کو اینٹی انزائٹی یا اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈال دیں کیونکہ وہ ایز چاہتے ہیں, ناٹ نیسسریلی کہ وہ پیشنٹ کی بینیفٹ کی بات کریں. ان کے لیے کسی ایلڈرلی پیشنٹ کو یا کسی اور پیشنٹ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. سو ایٹ ٹائمس ایٹ ٹائمس کچھ سینیریوز ہوتے ہیں جب اس میں جسٹیفائڈ ہوتا ہے میڈیکیشن دینا انزائٹی اور ڈپریشن کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب میں وہ چیز لکھتی ہوں, میڈیسن لکھتی ہوں, تو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آئی ایم فلی سیٹسفائڈ کہ آئی ہیو ناٹ لیفٹ اینی تھنگ آؤٹ. آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ادھر ریز کیا کہ صرف فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں ہے, اسپرچول بھی ہے اور پورا لائف اسٹائل کی بات ہے. اور جو تھوڑی ہماری بات چیت ہوئی لیڈنگ اپ ٹو دس کانورسیشن, اس پہ یو مینشن لائف اسٹائل ماڈیفکیشن 360 ڈگری اپروچ. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, آپ نے اسپرچول کو ذرا مینشن کیا, تو اگر جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ دیکھیں گے, ان کے لیے تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آپ کیا مطلب ہے اس کا لائف سٹائل ماڈیفکیشن 360 ڈگری, تھوڑے آسان الفاظ میں, مجھ سمیت میرے جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں. تو what is this lifestyle modification اور 360 ڈگری؟ کوئی بھی آپ کی بیماری ہے اس کو میں ایک 360 ڈگری کے اینگل میں کیسے مینج کر سکتی ہوں. آپ کا سائیکو سوشل یا سوشو کلچرل آ جائے گا, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کا اسپرچل یا religious element بھی آ جائے گا. So that kind of is an approximate 360 degree healthcare management plan of any condition. If you say کہ ایک بندے کو hypertension ہے, hypertension is not some state of tension. Hypertension is basically a sustained elevation of blood pressure کہ جن کا BP ایک certain level سے اوپر رہتا ہے continuously, that we call it hypertension. کسی کو hypertension ہے, کسی کو diabetes ہے. Usually diabetes میں تو لوگ multiple چیزیں دیتے ہیں, ڈائٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, physical activity کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سی کنڈیشنز ہیں جس میں صرف میڈیسن دی جاتی ہے. اینڈ وی ٹینڈ ٹو اگنور اور probably we don't have time to look into other aspects of health. تو اگر ہم صرف میڈیسن دے رہے ہیں پیشنٹ کو, وہ تو سمپل فارمیکوتھیراپی ہے, دیٹس ناٹ پراپر ٹریٹمنٹ مینجمنٹ پلان. سو میں نے جو اپنے پیشنٹس دیکھے اینڈ آئی فیلٹ دا نیڈ کہ ایک کمپریہنسو پلان دینے کے لیے پیشنٹ کو میں کس طریقے سے وہ کیا کام کروں کہ پیشنٹ کی ساری جو ایلیمنٹس ہیں, ساری پرابلمس ہیں, ساری ہیلتھ کے ایسپیکٹس یا ڈیزیز کے ایسپیکٹس ہیں وہ بہتر ہو جائیں. سو آئی کیم اپ ود دس فینومینا دیٹ از کالڈ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن. ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آیا کہ لیٹس سے اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس فزیکل سمٹمز کے ساتھ, یا چلے فزیکل سمٹمز پہ بات رکھتے ہیں, تو اس پہ پھر پہلے فزیکل سمٹمز کو ہم ایڈریس کریں گے کہ دیکھنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ بالکل فزیکل ہیں یا کہیں کوئی اس پہ مینٹل اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو پھر ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ دیٹ؟ یا اگر اس کو دوسری طرح لے لیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے کہ بھئی میں آلریڈی اینٹی انگزائٹی دوائیاں لے رہا ہوں, مگر پچھلے کو 2 ہفتے سے اب مجھے بخار بھی ہونے لگ گیا ہے, تو اس پہ آیا آپ پہلے اس کا پورا مینٹل اسکریننگ کریں گے فرام اے مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹیو اور پھر فزیکل پہ جائیں گے, تو کس طرح ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ اس نے وہ آلریڈی ایک چیز لے رہا تھا, میڈیکیشن لے رہا تھا, تو اس کو ہم اپنے میڈیکل کی بہت ٹرمینالوجی میں جیسے ہسٹری پیشنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ از اے نون پیشنٹ آف انزائٹی, ٹھیک ہے, on medication so and so, and now he has approached me with these chief complaints. For example, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بخار کے ساتھ آئے, کسی بھی اور وجہ کے ساتھ میرے پاس آئے, تو سب سے پہلے تو ٹاپ پہ وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ میرے پاس آیا, ٹھیک ہے. وہ تو انزائٹی اس کو ہے, وہ اس کو لے بھی رہا ہے, پتہ نہیں وہ مینج کیسے ہو رہی ہے, پراپرلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, دیٹ کمز آن دی لوور پوائنٹس. لیکن پہلے وہ چیز ایڈریس ہوگی جس کی وجہ سے the cause that brought him here to me, پہلے وہ ایڈریس ہوگی. اسی لیے میں آپ کو کہی تھی کہ فزیکل جو ہے نا, فزیکل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈیلی فیلنگس یا باڈی سائن اینڈ سمپٹمس جو آپ کو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا, پراپر ہسٹری پوری لی جائے گی, جس میں میں دیکھوں گی کہ اس میں فزیکل کوئی پرابلمس تو نہیں ہے, اس کو کوئی انفیکشن, سب سے پہلے بخار ہے تو وی تھنک اباؤٹ انفیکشنز. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی آج کل جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کمیونٹی میں کیا چل رہا ہے, وائرل ڈیزیزز چل رہی ہیں, کوئی بیکٹیریل چل رہی ہیں, کوئی فنگل چل رہی ہیں, کوئی اور اس طرح کا جیسے
अभी कोरोना है तो कोई भी बंदा आ जाए बॉडी पेन फीवर के साथ, सबसे पहले हम कोरोना देखते हैं. आजकल सीजन पाकिस्तान में डेंगू मलेरिया का है तो हम वो भी देख रहे होते हैं. उनके अपने स्पेसिफिक्स हैं, सो कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स हैं जो आपको रूल आउट करने होते हैं. उसके बाद एग्जामिनेशन होता है. अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो तो वी टेंड टू ट्रांसलेट एग्जामिनेशन पॉइंट्स एंड बाय आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट. तो उसको और अगर इन पर्सन पेशेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसको एग्जामिन करते हैं. फिर आपके ज़हन में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है. डिफरेंशियल का मतलब है कि मेरे ख्याल में इस पेशेंट को डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सो एंड सो. तो वो आप इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस जो आपके जहन में होता है, जितने साइन एंड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं उसके मुताबिक हम 1 2 3 के हिसाब से डिफरेंशियल्स लिखते हैं. उनकी जब सब चीज़ें आ जाती हैं और फिर पेशेंट ने जब आपको बताई होती हैं सारी प्रॉब्लम्स, उसमें हम बेसिकली डिजीजेस को शेल्विंग करते हैं कि सबसे प्रायोरिटी पे क्या है. फॉर एग्जाम्पल वो इन्फेक्शन की या वो फीवर के साथ आया है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या है. नंबर 1 हम इसको एड्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट मेरे पास 5 प्रॉब्लम्स के साथ आया और सब उसको मैटर करती हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे. तो शेल्विंग करके हो सकता है कि मैं उसी अपॉइंटमेंट में सारी चीज़ों के उसको मैनेजमेंट दे दूं. हो सकता है मैं उससे बोलूं कि ये टॉप 3 जो हैं इनको अर्जेंटली एड्रेस करना है, बाकी 2 जो हैं दे कैन वेट फॉर कपल ऑफ वीक्स. ठीक है, तो उस तरह फिर उसके साथ हम लेके चलते हैं. जब फिजिकल जितनी भी अच्छा, इसके साथ साथ हमारा एक पूरा एक फॉर्म परफॉर्मा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री भी, फिर ड्रग एलर्जीज भी देखी जाती हैं, उसका फूड, उसका एवरीथिंग एल्स, जितनी भी उसके साथ उसके लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछने होते हैं. तो when I am sure and I get the reports, वो फर्स्ट उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसको मेडिकेशन दी जाती है. देन अगर मुझे लगता है कि नहीं ये मैंने फिजिकली सारी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं, इस पेशेंट को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, देन नेक्स्ट सिटिंग में वी गो टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग. अब उसमें साइकोलॉजिकल में ये आता है कि स्क्रीनिंग लाइक इट्स अ होल न्यू होल अनदर डायमेंशन, क्योंकि उसमें एंजाइटी की भी अगर आप देखें जनरल एंजाइटी स्कोरिंग देखें तो 7-8 क्वेश्चंस उसके हैं. डिप्रेशन स्कोरिंग का आप देखें PHQ-9, वो उसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. तो वो जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स से पता चलता है कि इस पेशेंट को ये हो सकता है, तो आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, क्या आपने उसको प्राइमरी केयर पे मैनेज करना है या आपको लगता है कि आपने उसे कंसल्टेंट ट्रीटमेंट के लिए भेजना है या रिहैब और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है. फॉर एग्जांपल कोई अगर पेशेंट आया बाइपोलर डिसऑर्डर या मेनिक कंडीशन में जा रहा है तो उसको मैं घर पे या कोल्ड OPD में तो ट्रीट नहीं करूँगी, उसको तो इंस्टीट्यूशनल हेल्प चाहिए, तो उसको रेफर कर दिया जाएगा. तो इस तरह चीज़ों को रूल आउट करते करते वी मूव अक्रॉस. ओके, सो इस पे जो मुझे एक चीज़ समझ आई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फिज़िकल सिम्टम जो है वो फिज़िकल बीमारी की वजह से मौजूद हो. ऐसा भी हो सकता है काफ़ी मर्तबा कि जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो आपकी ज़हनी नफ्सियाती जो पेचीदगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं. सो किस हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं कि नहीं यार बस थोड़ा सा काम का प्रेशर है, थोड़ी सी स्ट्रेस है, तो बस इसीलिए लगता है मेरा BP डाउन है. तो इसको किस हद तक हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आगे चल के कि सिम्टम तो आपका फिज़िकल है मगर पीछे बैकग्राउंड में उसका जो असल वजह है या असल प्रॉब्लम है वो मेंटल है. उमर, इसमें यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह रहा है कि मुझे एकदम से मेरा जिस्म कांपने लग जाता है और मैं मुझे समझ नहीं आती है और मुझे एकदम डर भी लगता है और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है. अब ये सारे सिम्टम्स तो फिजिकल हैं, लेकिन जब मेरे पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले मैं उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स ही रूल आउट करूंगी. द पर्पस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही है कि उसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक डिजीज है तो वो मिस आउट ना हो. अगर वो सीधा चला जाता है साइकोलॉजिस्ट या ऐसे बंदे के पास जिसको फिजिकल चीज़ों की या मेडिसिन की इतनी नो हाउ नहीं है, तो प्रॉबेबली वो मेरे साथ हुआ काफ़ी दफ़ा कि शुरू में जब पेशेंट्स में भेजती थी, एक डायबिटिक पेशेंट थे, वो ही कंप्लेन्स कि मेरे पट्टे जो हैं वो जकड़े रहते हैं और मेरे बैक पे जो सारा सुन हो रहा है, क्योंकि एक ज़माने में उनको किसी ने एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल दिया था. सो पीपल इन देयर फैमिली दे लेबल्ड हिम कि ये तो साइको पेशेंट है. ठीक है, अब वो साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट तो नहीं, साइकेट्रिस्ट तो क्योंकि क्लिनिकल मेडिसिन डॉक्टर हैं तो वो
they get to know the symptoms, but وہ psychologist سے لیتے رہے اور وہ بہت ان کی جو سائنس ہے نا ڈینجر سائنس وہ مس آؤٹ ہو گئے. بیسکلی ڈائبیٹک پیشنٹ تھا اور اس کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں تھی, اور ڈائبٹیز میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جس میں آپ کو اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں جس کو بندہ ایزیلی سومیٹو سینسری یا سائیکولوجیکل پرابلمس ڈکلیئر کر سکتا ہے. سو وہی بات آتی ہے کوئی پیشنٹ کسی فزیکل سمٹم کے پاس آیا تو فرسٹ اسٹیپ ہمیں نے رول آؤٹ کرنا ہے. پیشنٹ اینزائٹی کے ساتھ آیا, کہیں اس کو تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹریمرز ہو رہے ہیں, اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے, اس کی پیلپٹیشن ہو رہی ہے, وہ چیزیں سب میں رول آؤٹ کر کے دین آئی کم. یا پھر میرے پاس کوئی اتنی اوور پاورنگ ایویڈنس ہو کے یا وہ اپنی پچھلی رپورٹس لے کے آ گیا پیشنٹ کہ نہیں میرا سب کلیئر ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو دین آئی لک انٹو دیز تھنگس. کیونکہ جو بیہیویئر پیٹرن اور تھاٹس ہوتی ہیں نا, یہ انشاءاللہ ہم جب آگے مزید پروگرام کریں گے, سو آئی ول ٹیل یو کہ تھاٹس جو ہیں, تھاٹ پیٹرنس کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو فزیکل سمٹمس, کہ وہ تھاٹ پیٹرنس بیکم گو انٹو یور فرام یور برین, دے گو انٹو دا باڈی, آپ کی پیلپٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ٹریمر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین یو بہیو ان اے سرٹن وے, یا کبھی پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, کبھی پینک ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, تو تھاٹس ٹرانسلیٹ انٹو بہیویئرز اینڈ ایکشنز. تو وہ اس کے ارد گرد ساری کوگنیٹو بہیویئر تھراپی جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے. اس موقع پہ آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ اس کو تھوڑا سا اب ایک قدم اگر ہم آگے لے کے چلیں, اسپریچول کی آپ نے بات کی اور ابھی تھاٹس کی آپ بات کر رہی تھی, تو کافی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اسپریچول کی بات کرتے ہیں تو کافی لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس نماز پڑھ لو تو صحیح ہو جاؤ گے. کافی لوگوں سے میں نے سنا کہ نہیں, اگر ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کووڈ ہوا ٹیسٹ کراتے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں نماز پڑھ لو. اب اس پہ آپ کی تھاٹس اثر کرتے ہیں آپ کے جسم پر, اسپریچول کا کیا پارٹ ہے اس پوری تصویر میں, ہاؤ ڈز اسپریچول فٹ ان, اور اس کو آپ کیسے لے کے چلتی ہیں یا چلیں گی بالفرض ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس سے آتی ہیں. دیکھیے اس میں اسپریچول یا ریلیجس, ہمارا جو کلاسیکل سائیکو تھراپی وغیرہ ہے نا, یہ ایلیمنٹس اس میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس چیز کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپریچول بلیفس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ پرسنل ہے, سب چیزیں ہیں. میری لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں آئی انٹینشنلی میک یوز آف اٹ, آئی یوز اٹ ایز اے ویری پاورفل ٹول. اے پرسن ہو ہیز سم بلیفس, اس کا باڈی میکنزم, اس کا بیہیویئر ہی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل فورس ٹو ہیو سرٹن بلیفس. تو اس میں یہ ہے کہ obviously جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے رول آؤٹ کر لیا کہ اس کو فزیکل یا مینٹل اس طرح کی نہیں ہے. اب جہاں پر اسپرچل بات آتی ہے تو ہم اس کو الحمدللہ وی آر مسلمس, سو آئی ہیو سین پیشنٹس who have a belief, they tend to fight better with the disease and recuperate in a better way. اب پیشنٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گولی ہے, جیسے میں نے ایک میڈیسن کوئی بھی کسی پیشنٹ کو دی, فار ایگزامپل very commonly used medicine پیراسیٹامول یا پیناڈول, میں نے پیشنٹ کو دے دی. ایک کو درد تھا, اس سے آرام آ گیا. ایک پیشنٹ تھا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, بالکل ہو سکتا ہے اس کو مطلب بالکل ہی کوئی فرق نہ پڑے اس سے میڈیکیشن سے, ہی نیڈ اے پروبیبلی کچھ زیادہ پوٹینسی کی, اس کو پین کلر چاہیے. اور ایک پیشنٹ تھا جس کو ریئیکشن ہو گیا, اس کی گولی میں تو فرق نہیں تھا, لیکن اس کو ہم میڈیکل یا سائنٹیفک طور پہ ہم فارماکو ڈائنامکس یا فارماکو کائنیٹکس کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی گولی کے ساتھ کیا کرتی ہے, گولی آپ کی باڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے. لیکن اب جب ہم ریلیجس سائڈ پہ جائیں تو why certain people have benefit, why certain people have allergies, and why some people do not have any impact of the medicine. Religiously یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, میڈیکیشنز, سائیکو تھراپیز اور یہ سوشل انٹریکشن, ساری چیزیں اس میں تاثیر ڈالنا جو ہے نا وہ اللہ کا کام ہے. جب ہم گولی دے رہے ہیں تو اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے. So with this firm belief, my patients really respond well to that. And then being Muslims, alhamdulillah, جس طرح کی ہماری therapies ہیں, like we say کہ قرآن میں خود بھی ہے کہ شفا ہے, قرآن ہے, مسنون دعائیں ہیں, تو کچھ ہیلتھ کی بہت سی کنڈیشنز جو ہیں وہ پراپر بلیف سے, اللہ کے ذکر سے, قرآن پڑھنے سے, مسنون دعائیں پڑھنے سے there is markedly improved response. اور میرے پاس چونکہ ایک ایویڈنس اس طرح بنتی ہے کہ الحمدللہ جو پیشنٹس ہیں, they're Muslims, تو ان کا اور ایک نان بلیورس کا ایک ڈراسٹک ڈفرنس آیا ہے. And that I think the only difference was belief.
and spirituality. बाकी 3 elements तो same है सब में, लेकिन एक element जो missing होता है वो belief का missing था. अच्छा, अब जब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया. अब एक पेशेंट आता है, मैं लेट्स से उमर खान आपके पास आया है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि उमर खान को क्या मसला है. अब इसको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है आप किस तरह अप्लाई करेंगी? नया पेशेंट है, कोई हिस्ट्री नहीं है आपके पास, तो इसको कैसे आप लेके चलेंगे उमर खान में? देखिए, वो जो मेन एक उसका प्रोटोकॉल है वो तो वही चलेगा कि हमने फर्स्ट फिजिकल से स्टार्ट करना है, फिर वी मूव ऑन टू मेंटल एंड देन साइकोसोशल एंड देन एंड में रिलीजियस. द ब्यूटी ऑफ LSM lifestyle modification is it's quite flexible and it can be applied across the lifespan of an individual, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बर्थ इन्फेंसी का आपका पेशेंट हो, चाहे चाइल्डहुड में हो, टीनेजेस में हो, एडोलेसेंस जो है, मैरिड हो, प्रेग्नेंट हो फीमेल, कोई पोस्टनेटल है, कोई ओल्ड एज में आता है, तो इन सब जगहों पे तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तमाम इंडिविजुअल्स पे किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में अप्लाई हो सकती है. और आपने स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की, अब एडल्ट्स की तो बात चले मुझे समझ आती है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जो डॉक्टर्स की बात मुझे समझ आती है, मैं समझ सकता हूँ. बच्चों की जब हम बात करते हैं, और क्योंकि कितना ज़रूरी है मेंटल कंडीशनिंग, स्पेशली आज कल कि जिस तरह की माहौल में हम रह रहे हैं, बच्चों पर हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को अपनी बात समझाना, बच्चे अपनी बात समझाना इतने आराम से नहीं कर सकते, तो इसी चीज़ को हम बच्चों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी एग्जैक्टली आपने सही कहा. मतलब बच्चे खुद तो इस चीज को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एक बच्चा नया नया पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न है या इन्फेंट है, इन्फेंट इज लेस देन 1 years old, या अपनी टॉडलर्स में है, तो वो उसके ऊपर कैसे अप्लाई होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? वो खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो कि वही साइकोसोशल एंड मेंटल उसकी थेरेपी से आती हैं. उसमें कुछ माइलस्टोन्स और कुछ इस तरह की चीजें पेरेंट्स को सिखाए जाते हैं जिससे उनकी पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती हैं. और यू नो बाय अप्लाइंग दोस दे कैन स्टे वेरी मच रेलेवेंट इनटू देयर चिल्ड्रंस लाइफ. अदरवाइज यू कैन सी इन टुडेज हाइपरसेक्सुअल एंड एवर चेंजिंग technological world, parents kind of lose their space from the child's in the very early years of life, you know. जैसे आपके स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर्स होती हैं ना, तो वो सब्स्टिट्यूट पेरेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल्स बच्चों के बन गए हैं. So you tend to the parents tend to lose that space. So basically it's parenting advice जो कि childhood पे और बच्चों की upbringing पे, जिसमें आप उसको early childhood divide कर लेते हैं 0 to 5 years and then afterwards उसमें फिर division आ जाती है कि बच्चा कौन सी एज में है और पेरेंट्स को उस वक्त कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स देनी चाहिए. उसमें ऑब्वियसली मेडिकल भी आ जाते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत छोटा है, खाने पीने का मसला है, तो पिकी ईटर्स, यू नो. उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसको स्क्रीन टाइम कितना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी में कितना इन्वॉल्व करना चाहिए. अच्छा, अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप बच्चे को बबल में रखें, क्योंकि बाहर जाएगा तो हर चीज जो है वो उल्टी हो जाएगी. सो आपने उसको सुपरवाइज एक्सपोजर कैसे देना है? एक्सपोजर तो देना है, लेकिन बिल्कुल खुला एक्सपोजर नहीं देना कि वो सब नेगेटिव चीजें ले ले. तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो अर्ली चाइल्डहुड पेरेंट्स भी they become a very relevant part of a child's upbringing. होते तो हैं इन एक्चुअल, लेकिन ये है कि वो बच्चे के लिए भी रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत दफा हमने ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनके ज़हन में यही आने लग जाता है कि अम्मी अब्बू को नहीं पता कुछ. स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर जो एडवांस्ड हैं स्कूलिंग वगैरह में, तो वो कुछ अर्से बाद यही समझते हैं कि यू नो माय पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग. ये ओके, सो इस पे अब मैं आऊँगा. ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, बड़ा लोडेड क्वेश्चन है आजकल के ज़माने के लिए. अब एक 13 साल का लड़का लड़की हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं. मेरे माँ बाप को कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, मेरे दोस्त ये कहते हैं, मेरे दोस्त ये करते हैं, और वो जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मैनिफेस्ट होते हैं फिजिकल कंसर्न्स में, और सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ. 13-14 साल के लड़के लड़की पर कोई और कस्टमाइज्ड अप्रोच होगी, कोई और स्पेसिफिक टारगेटेड अप्रोच होगी, बिकॉज वो जो उम्र का हिस्सा है बहुत ही सेंसिटिव येट क्रूशल हिस्सा है. तो उसको हम उसी तरह डील करेंगे कि जिस तरह हम एक बहुत ही छोटे 3-4 साल 5 साल के बच्चे को करेंगे, या जिस तरह अडल्ट को करेंगे, या उसके लिए थोड़ा सा एक फोकस टारगेटेड ज़्यादा कस्टम अप्रोच होगी इस कॉन्टेक्स्ट में?
नहीं, इसमें तो कस्टमाइज्ड ही होती है, हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड है। एक आप खास परफॉर्मर सब पे फिट नहीं कर सकते। हम एलिमेंट्स तो कह रहे हैं कि सब पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने जब इंडिविजुअल प्लान बनाना है तो वो कस्टमाइज्ड प्लान है, ठीक है, और वो हर बंदे की, हर बच्चे की, हर एडोलेसेंट की नीड के अकॉर्डिंगली है। उसमें देखना है सबसे पहले पेरेंट्स को साथ साथ इवॉल्व होना है। कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पेरेंट्स मतलब पहले 10 साल सो नहीं सकते कि 11वें साल में एकदम से वो जागे हैं और उनको लगा कि अच्छा बच्चा तो हाथ में से निकल रहा है या बिल्कुल ही मेरे से बागी हो रहा है, and I'm not a part of his life anymore. So you parents continuously need to evolve. जैसे ही आप पेरेंट्स बने हैं, you need to make an effort intentionally to be a part of और आप अपनी भी साथ में ग्रूमिंग करें, अपनी स्किल्स नई कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि अपने बच्चे को किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में कैसे लेके चलना है। जब आप ये बात करें तो दैट्स अ प्यूबर्टी की एज है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। गर्ल्स की बात ज़्यादा पहले हो जाती है, गर्ल्स बॉयज क्या, अब जिस तरह एडवांसमेंट ज्यादा हो रही है तो चूंकि नॉलेज, बच्चों की इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, इस तरह उनके हार्मोनल चेंजेस भी एक काइंड ऑफ प्री मैच्योर या प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले शायद नहीं होते थे। तो अब वो बहुत जल्दी उनकी प्यूबर्टी स्टेज आ रही है। तो एक बायोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है कि उनकी बायोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ हार्मोन्स हैं, एक उनकी फितरी तकाजे हैं, वो चीजें हैं। पेरेंट्स को उन चीजों का पता होना चाहिए, कैसे बच्चे को बिठा के बताना है बलूगत के बारे में, प्यूबर्टी की कुछ स्टेजेस। मदर जो है वो बेटी को बताए, फादर जो है वो बेटे को बताए। अच्छा, उसके आगे रेपरकशंस कि आपके बिहेवियर बच्चे को बताना है कि आपका बिहेवियर इसके बाद कैसे होना चाहिए, हाउ शुड यू ड्रेस, हाउ शुड यू मूव अराउंड इन सोसाइटी, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। उस तरह की सेक्सुअल एजुकेशन और बाकी चीजें जो रेपरकशंस है उनके बारे में बात होनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली बच्चा जो है वो प्राइवेसी मांगता है, तो आपने एक सेट रूल्स करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास मोबाइल, लैपटॉप वगैरह है एंड यू सी कि कितनी खराबी हो रही है इन चीज़ों में, अगर आप अनसुपरवाइज्ड एक्सपोजर, मतलब उसको एक्सपोजर दे रहे हैं लेकिन सुपरवाइज नहीं है, यू नीड टू हैव अ लैपटॉप या मोबाइल उसका इन चेक। आप लैपटॉप उसको बेशक दें लेकिन बिल्कुल बाहर दें, मतलब कमरे में लेके नहीं वो अकेले बैठे, वो बाहर सबके सामने यूज करे अगर उसको स्कूल, कॉलेज या अपनी असाइनमेंट्स के लिए जरूरत है। इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो हमने रखने हैं। एंड टॉक टू द चिल्ड्रन कि आपकी बेहतरी के लिए, सो दैट यू बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ बीच में ऐसी स्टेज आएगी कि उनको लगेगा कि देयर फ्रेंड्स आर बेटर देन देयर फोक्स, कि वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा यो हैं, ज्यादा कूल हैं, और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है। बट अगर आप पेरेंट्स जो है ना वो साथ साथ इवॉल्व होंगे टाइम के, दे नो द इन्स एंड आउट, तो आई प्रोबेबली ये स्टेज नहीं आएगी। वही बात है कि बचपन से अगर वो लेके जाएंगे तो बच्चे का माँ बाप के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि ही वुड नॉट टेंड टू थिंक लाइक दैट। लेकिन हाँ, एकदम से अगर आप जाके हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ऑलराइट, अच्छा, इसमें मुझे एक और बात जो समझ आई है कि अगर हम थ्रू आउट इस तरह की बातचीत, कॉन्वर्सेशंस, बिहेवियर, इंटरेक्शंस पे फोकस नहीं करेंगे, तो जब हम इस मकाम पे पहुंचेंगे और तब अगर हम बात करना भी शुरू करना चाहेंगे तो वो बहुत बड़ी एक डील होगी बच्चे के लिए कि यार आज तक तो इस तरह की बात हुई नहीं है, तो अब क्या बात है, मैंने क्या कुछ गलत किया है या मेरे से कोई गलती हुई है कि आज मेरे से इस तरह की कोई बातचीत की जा रही है। तो आई गेस ये भी एक वजह है कि हम खुद भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंफर्टेबल हों वो सारी बातचीत करने में, मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस करने में, ताकि बच्चों को भी वो कॉन्फिडेंस हो कि यार हाँ मेरे माँ बाप हैं मगर मैं उनसे जाके किसी भी तरह की बात कर सकता हूँ या किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता हूँ कि जो मे बी हम सवाल नहीं चाहते कि वो बाहर किसी और से पूछें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस तरह का जवाब उन्हें मिलेगा, आया सही जवाब मिलेगा या नहीं। तो उस शॉक वैल्यू को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे समझ आई है आपकी बातों से, कि हम शुरू से इस सारे बिहेवियर को लेके चलें ताकि वो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप हो। जी एग्जैक्टली। और दूसरी बात कि अगर चलें फॉर एग्जांपल किसी को 13-12 इयर्स बाद भी पेरेंट्स को आइडिया हुआ है कि ये पहले करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, उसमें जरा स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। रीच आउट टू प्रोफेशनल्स जो कि आपको आपके बच्चों के साथ थेरेपी देंगे और दे कैन एस्टैब्लिश द बॉन्ड that was built in the first place, that should have been built in the first place, लेकिन वो नहीं बना, but never say never. So आप कभी भी बेहतरी की तरफ जो अपना रास्ता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। So parents can always reach out for help if they feel they are not इतने capable नहीं है इसको खुद से लेके चलने के लिए, and then they can learn the things for going forward.
बहुत बहुत शुक्रिया उमामा और या डॉक्टर उमामा शेख। काफ़ी बातचीत हुई और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बातचीत हुई है इससे 4-5 आराम से जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं वो निकल सकती हैं कि जिस पे हम और डिटेल में रोशनी डाल सकते हैं। तो आई गेस आज के लिए हम अपना जो सेशन है उसको रैप अप करते हैं। जाने से पहले कोई सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कोई आपके जो एक्सपीरियंस पढ़ाई, कस्टमर्स नहीं पेशेंट्स से बातचीत करने का जो वक्त आपने गुजारा है उसका निचोड़ 1-2 मिनट में जो शायद किसी एक सुनने वालों को भी की भी मदद कर सके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और उसके साथ फिर हम रैप अप करते हैं। अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करें कि वो गोल्स आपके बिल्कुल सामने रहें, तो उसको देखते हुए आप अपनी पूरी लाइफ की डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को गुजारें। तो जब तक आपके गोल्स आपके सामने रहेंगे, हर बंदे का इंडिविजुअल होता है, वो आपकी लाइफ के गोल्स भी हो सकते हैं, वो आपकी आखिरत के गोल्स भी हो सकते हैं, वो कंबाइंड गोल्स भी हो सकते हैं। तो आप अगर उन गोल्स को लेके चलेंगे और इवॉल्व करते रहेंगे विद टाइम एंड विद नीड, तो प्रोबेबली यू विल टेंड टू गो टुवर्ड्स सक्सेस इंशाल्लाह। फैंटास्टिक। और इसके साथ मैं जो पूरी बातचीत से मुझे जो एक चीज़ समझ आई है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, मगर कोशिश करें कि जल्दी कोई काम शुरू हो जाए। मगर अगर आपको आज भी ख्याल आया कि यार मुझे चाहिए कि मैं अपने बेटे से, बेटी से, बच्चों से बातचीत करूं या किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी भी शख्स से बातचीत करूं, तो हम शुरू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बीमारी के सिम्टम फिजिकल हैं तो वो सिर्फ फिजिकल बीमारी हो, मेंटल भी हो सकता है, साइको सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकती है और स्पिरिचुअल रीज़न भी स्पिरिचुअल हो भी हो सकती है। सकता है। यस, तो ज़रूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं अपने जहन में एज अ पेशेंट, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से बात करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें जिसको पता है, जिसको एक्सपीरियंस है इन तमाम चीज़ों का, जिसने पिछले 10, 15, 20, 25 साल, जिससे भी आप बात करें, लगाए हैं अपनी ज़िंदगी के इस चीज़ को समझने में, सीखने में और फिर अप्लाई करने में। तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक सवाल करने से 2 चीज़ें होंगी, या तो आप कुछ सीख लेंगे या आपको ये पता लग जाएगा कि इस किस्म के सवाल के जवाब के लिए हमें किसी और शख्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो आपका एक और दोस्त बन जाएगा, एक और मेंटोर बन जाएगा। क्योंकि जितना सीख सकते हैं हम इस एक छोटी सी ज़िंदगी में, हमारे लिए उतना ही अच्छा है और हम अपनी आने वाले जो जनरेशन है उसको ज़्यादा सिखा सकते हैं। इसी थॉट के साथ, सोच के साथ मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर उमामा शेख। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने मसरूफ़ स्केड्यूल से टाइम निकाला। और देखते रहिए उमर खान के साथ टॉकिंग मेंटल हेल्थ। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन को हम एड्रेस कर सकते हैं, किसी का भी भला हो सकता है, बेशक वो क्वेश्चन आप पूछें, भला किसी और का हो, तो आपके अकाउंट में वो सदका जारिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।